Good morning and warm welcome to you all. I am Vaibhav, your host for today. Our topic for today is dim satisfying reporting challenges under tax audit, which shall be taken by Ms. Sonia Arora. She is a former chairperson of Jalandhar branch, co-opted member of WIMEC of ICAI. She shall be covering brief discussion on clause 44, notices and litigation under GST, emphasis on pretend clauses of tax audit pertaining to GST, followed by question and answer session. Our agenda for today is virtual inauguration by Dr. Sundar Kataria, invoking the blessing of deity, chanting of Gayatri Mantra, introduction of speaker, presentation by Ms. Sonia Arora, question and answer session, and last closing session. A brief introduction of Dr. Sundar Kataria. Sadgun Sangh conceived and led by Dr. Sundar Kataria, driven with a mission to elevate the quality, safety, and environmental awareness levels of industry. Sadgun Sangh is a series of educative, informative events aiming to illuminate professionals on possible solutions to current issues of industry and economy. Let's know more about Dr. Sundar Kataria. His designation and organization: Chairman and Managing Director, International Certification Services Private Limited. His academic qualifications are Mechanical Engineer, AMIE, Honorary Doctorate, Business Management. His experience: nuclear, RAPP. He started his career in building India's first nuclear power plant at Travanbata, Kota, Rajasthan. Oil and gas, EIL. He contributed in developing India's first oil and gas field at Bombay Heights since its inception. DNV. He was head of industry and offshore development with DNV for 2 decades. ICS. He is the founder of first Indian conformity assessment and inspection body known as International Certification Services Private Limited, which is a provider of total quality solution under single umbrella with a wide spectrum of services. His achievements and awards are Lifetime Achievement Award of NACE Corcon, received several national and international awards. Now I request Dr. Kataria to virtually inaugurate the session. कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. Please join us for the recitation of the Gayatri Mantra. Introduction of our today's keynote speaker. Her designation and organization: former chairperson of Jalandhar branch, co-opted member of WIMEC of ICAI. Her academic qualification: BCom, Chartered Accountant, CMA. Her area of specialization and experience are
presently co-opted member of WYMEC of ICAI, former chairperson of Jalandhar branch of NIRC of ICAI in the year 2021 and 22. Nominated as co-opted member of the Women Empowerment Committee of NIRC, deliberate in various seminars, webinars, workshops, and open discussion on GST. Her awards and achievements are having strong academic background and practical approach, assisting clients in cost reduction and establishing a robust internal control mechanism, providing consultation to Reno Industries on direct and indirect taxation matter, worked at post of Assistant Vice President Finance Account, NBFC, MFI name Midland Micro Fin Limited 2009, March 2011. Please welcome Sonia ma'am. Over to you, ma'am. Thank you so much, Vaibhavji, for the introduction. And firstly, I would like to thank this platform for giving me this opportunity. So let's make this discussion a part close 44, an important one as a interactive session. So I think everybody can chat. In the chat box, you can write hello, hi, so that I can visualize the audience is active. Vaibhavji, is the screen is sharing or not? No, ma'am. Not sure. Not yet. Okay. Now? No, not yet, ma'am. Is it visible? No, ma'am. Not yet visible, ma'am. No. Yeah, ma'am. Now visible, ma'am. Now visible. Okay. Great. Good morning from hello from Vaibhavji, Shivani ji, Arun ji, Preet ji, hello, and other also who are attending this session. Hello and good morning to all. So please be active for this. You can even, open the video so that I can at least we can make a eye contact. So the today topic is clause 44. We all know this is a very, very important topic related to the tax audit. So how many you are doing the practicing chartered accountant? कितने बंदे हैं जो ये tax audit कर रहे हैं? Just write hello. Yes, we are doing it. तभी मेरे को पता चलेगा ना this topic कैसे relevance है, क्या है. अगर आप सीए नहीं भी हैं तब भी आपकी अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं इवन देन दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू. आपको पता होना चाहिए अगर आपसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई डाटा मांग रहा है तो वो क्यों मांग रहा है, क्या गवर्नमेंट ने कंप्लायंसेस कर दी हैं इसके रिलेटेड, उसकी आज हम बात करेंगे. क्लोज 44 इन द इनकम टैक्स ऑडिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज दैट हैज बीन फिटेड. आया तो ये 2018 में था, बट क्या हो रहा था, हर्डल्स के कारण जीएसटी न्यू था, बुक्स ऐसे मेंटेन नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं था, तो गवर्नमेंट इसको डेफर कर रहे थे. एवरी ईयर एक नोटिफिकेशन आ जाती थी कि ये इस बार क्लोज नहीं करना, नेक्स्ट टाइम वी विल सी. बट नाउ फ्रॉम द लास्ट ईयर सारी डेफरमेंट्स क्लोज हो चुकी, नाउ दे हैव टू रिपोर्ट. तो सबसे पहले माइंड में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ये क्लोज गवर्नमेंट लाई क्यों. जीएसटी ऑडिट है, जीएसटी की रिटर्न्स जा रही हैं, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स की टैक्स ऑडिट की जा रही है, तो गवर्नमेंट ने टैक्स ऑडिट में इनकम टैक्स में जीएसटी का क्लोज एंटर क्यों किया. एक्चुअली गवर्नमेंट क्या चाहती है, हमें पता चले कि कितने परसेंट अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ कितना क्वांटम है. व्हेन आई एम सेइंग अनऑर्गेनाइज्ड, इनका मतलब क्या है, जीएसटी के अंडर जो रजिस्टर्ड नहीं है, दिया द अनरजिस्टर्ड पर्सन, आप कितनी बी टू बी सेल करते हो, बी टू सी करते हो, और आपकी बाइंग
कितनी अनरजिस्टर्ड पर्सन से है ये क्वांटम। मेन इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू हैव अ आई ऑन दिस। इसी के ऊपर ध्यान रखना उनका मेन था कि हम पहले चेक करें आईओ हमारी कि हमारी इकोनॉमी में अनरजिस्टर्ड सेक्टर कितना है, सो दैट जितनी ये बोगस एक्सपेंडिचर बुक किए जाते हैं दे कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट। अब नाउ सेकंड क्वेश्चन इन द माइंड, ओके गवर्नमेंट हैव मेड दिस क्लोज बट फॉर whom इज इज एप्लीकेबल। ये किस पे लगता है, क्या सबको ये एंटर करना है डाटा? क्लोज 44 एप्लीकेबल उस पे होगा पहले तो, ये लगता है ना जिसके पास जीएसटी नंबर होगा उसको ही क्लोज 44 लगेगा। माइंड में यही चीज आती है, यस और नो? आई एम लुकिंग इनटू द चैट बॉक्स, जस्ट टेल मी। एप्लीकेबिलिटी में क्लोज 44 आपको उसका ही लगता है कि जिसका जीएसटी नंबर है, कि जीएसटी नंबर नहीं भी है, यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इवन देन यू हैव टू फाइल दिस क्लोज? Yes or no? Just write in the chat box. कुछ भी लिख सकते हैं, क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए, yes के नो? क्लॉज 44 की रजिस्ट्रेशन के साथ कुछ लेना नहीं। आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या नहीं रजिस्टर्ड हो, लेट टेक अ एग्जांपल ऑफ अ डॉक्टर्स, लॉयर्स, अगर उनका भी टैक्स ऑडिट हो रहा है तो ये वाला क्लॉज आपको डालना ही डालना है, एंटर करना पड़ेगा। तो क्लॉज 44 का आपकी रजिस्ट्रेशन के साथ कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है। नाउ दिस इज क्लियर? यस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द असेस, अगर आपका टैक्स ऑडिट हो रहा है तो आपको ये क्लोज में डाटा डालना है, अगर टैक्स ऑडिट नहीं है तो नहीं डालना। तो टेक्निकली ये कौन से पर्सन के लिए एप्लीकेबल हो गया? ऑब्वियसली जो पर्सन रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी लॉ वो। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं भी हो, you are exclusively engaged in solely in exempted goods and your turnover is such that you have to undergo tax audit, आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, करवाना पड़ता है, तो उसके लिए ये क्लोज का डाटा एंटर करना पड़ेगा। हिस्ट्री इज अ हिस्ट्री। इनिशियली जब ये 2018 में आया था, सर्कुलर आया था, तो उसको सेक्शन 119 के अंडर ऑर्डर के अंदर इसकी एक्सटेंशन कर दी गई थी। जैसे मैंने बात की डेफरमेंट, 2018 से इसकी डेफरमेंट इट्स कीप ऑन गोइंग, इट्स ओनली इन द लास्ट ईयर जब ये क्लोज फिट हुआ था। तो व्हाट्स द क्लोज इज रिगार्डिंग, तो ये क्लोज को बड़े ध्यान से देखना, ये क्लोज क्या कहता है। ये क्लोज हमें बात कर रहा है किस चीज की? अगर आपके पास एक्सपेंसेस है, यानी कि जब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट पी एंड एल, यही माइंड में आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने हमें बोला है कि आप अपने एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करके इसमें एंटर करो। बाइफरकेट करके मतलब सिर्फ डिवाइड कर दो कौन से एक्सपेंडिचर है जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन से लिए हैं, कौन से एक्सपेंडिचर है जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिए। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल सेग्रीगेशन इज इनटू टू पार्ट्स। कौन से दो पार्ट है? सबसे पहले आपने देखना है, लेट सपोज आपके पी एंड एल में 5 लाख का एक्सपेंस है। अब वो 5 लाख तो यहाँ आएगा, वो 5 लाख को पहले देखो कि रजिस्टर्ड पर्सन से कितना लिया, फिर देखो अनरजिस्टर्ड से कितना लिया। जो आपने रजिस्टर्ड से लिया 5 लाख वो इधर आ जाएगा, जो अनरजिस्टर्ड से लिया है वो दूसरी साइड हो जाएगा। अब रजिस्टर्ड के अंदर यानी कि 5 लाख में से मैंने बोला 3 लाख इज फ्रॉम द रजिस्टर्ड एंड 2 लाख इज फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड, तो 2 लाख तो सेट असाइड हो गया। फॉर 3 लाख क्या चाह रहे हैं, उसकी आगे सब डिवीजन जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन से लिया उसमें से बताओ कि रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज कितना था, दोज आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज एग्जम्प्ट फ्रॉम, एग्जम्पशन किस किस को मिली हुई है फ्रॉम जीएसटी?
क्या आता है माइंड में, क्या चीज हो सकती है? एनी आइडिया? एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, वी नो। एक होता है कि जीएसटी लगता ही नहीं, जीएसटी नहीं लगता मींस सप्लाई नहीं है, नॉन जीएसटी सप्लाई। जीएसटी लगाने के लिए पहले सप्लाई में आना जरूरी है, तो अगर वो सप्लाई नहीं है तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम सेइंग इट इज अ सप्लाई बट इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो वो जितने भी एक्सपेंडिचर है रिलेटिंग टू योर एग्जम्पशन, दे विल बी कवर्ड ओवर हेयर। तो जब आपको एग्जम्पशन की बात करी जा रही है तो आपको ये माइंड में रखना है, दे आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंडिचर which are not taxable under or exemption. Alcoholic, petroleum, they are all exempted under the GST. High diesel oil, motor spirit, natural gas, they are all the examples की जो exemptions दी हैं। आपको पता है पेट्रोल पंप वाले रजिस्टर्ड होते हैं जीएसटी के अंडर, यस। पर क्यों? क्योंकि जब पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है, बट अगर वो टैक्सेबल लुब्रिकेंट ऑयल सेल करते हैं तो दैट इज अ टैक्सेबल वन। तो उनकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाती है लिमिट के लिए, जो हमारी आज की डेट में एक्सक्लूसिवली गुड्स के लिए इट्स अ 40 लाख, एंड इफ यू आर डीलिंग एक्सक्लूसिवली इन गुड्स दैट इट्स अ 20 लाख। नॉर्मली क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस लिमिट पे है, तो पर्सन को लग रहा होता है 40 लाख पे। ऐसा नहीं है, अगर आप अकेले गुड्स में डील कर रहे हैं then the limit is 40 lakh. Up to 40 lakh there is no GST. After 40 lakh you have to get the registration. Now if we talk about 20 lakh limit, this is only for service sector, the one who are dealing with the services. So now coming to the main, that is all about the registration, कि कब रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, क्या लिमिट है। बट हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्लोज 44 में हमें बाइफर्केशन देनी थी कि एक्सपेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक पहला कि आपके पीएनएल में जितने एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस कितना पार्ट है जो आपने रजिस्टर्ड से बाय किया, कितना पार्ट है जो आपने अनरजिस्टर्ड से किया। अगर आपने रजिस्टर्ड से किया तो उसकी आगे और बाइफर्केशन मांगी। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी दो तरह की रजिस्ट्रेशन होती है, एक कॉम्पोजिट डीलर की और एक रेगुलर की। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन का क्या आता है, कॉम्पोजिशन का पर्सन आगे कॉम्पोजिशन डिटेल में भी बताऊंगी, बट कॉम्पोजिशन वाले में सिंपल होता है कि 1% यू हैव टू पे, यू नीड नॉट टू इशू अ टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई इज गिवन एंड दे कांट टेक द आईटीसी, और लिमिट इज 1.5 सीआर। अप टू दिस एक बेनिफिट दिया हुआ है कि आपको क्वार्टरली रिटर्न करोगे, अपना डाटा बिल वाइज इनवॉइस वाइज पोर्टल पे नहीं डालना, सिंपली आपने अपनी टर्नओवर डालनी है, जितनी टर्नओवर रहेगी उसका 1% आपको पे करना है। ठीक है, दैट इज अ कॉम्पोजिट डीलर। तो कहते कितने आपके एक्सपेंसेस, आपने जो एक्सपेंस बुक किया है उसमें से रिलेटेड टू जो कॉम्पोजिशन है उसको हम कॉलम नंबर 4 में डालेंगे। 1 is only the serial number of, so hardly matter. In the 2 we have to enter एक्सपेंडिचर। अब माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन आता है, एक्सपेंडिचर लिखा है तो अब मेरे पी एंड एल में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी है, टेलीफोन एक्सपेंस भी है, बैंक चार्जेस भी हैं, तो क्या मेरे को ये सारे अलग अलग हेडवाइज लिखने हैं यहाँ पे? अगर हम ऊपर ध्यान से पढ़े, दे हैव रिटन अबाउट टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। व्हेन दे आर राइटिंग टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इसका मतलब हमें हेडवाइज नहीं करना है, हमें एग्रीगेट टोटल अमाउंट लिखनी है। जब हमने टोटल अमाउंट लिख दी, फिर हमने लिखा रिलेटेड टू एग्जम्प्टेड गुड्स, जितने एक्सपेंस थे उसको साइड पे कर दो। एग्जम्प्टेड सबको पता है, बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, दे आर एग्जम्प्टेड। अब मेरे पी एंड एल में बैंक चार्जेस का एक्सपेंस है, बैंक रजिस्टर्ड होते हैं, बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक्सपेंस डला होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कहीं जगह पे अगर आप देखोगे इन द साइड ऑफ जम्मू, दैट इज गवर्नमेंट ओन, वहां पे जीएसटी नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं लगता, बट
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो इलेक्ट्रिसिटी दे रही है वो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, तो सबसे पहले हम रजिस्टर्ड में लिखेंगे, बट रजिस्टर्ड के अंडर कहाँ पे आएगा, एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी में। इलेक्ट्रिसिटी का जो अमाउंट आएगा वो एग्जम्प्ट वाले में आएगा, और अगर मैंने कुछ कॉम्पोजिशन से एक्सपेंडिचर लिए हुए हैं वो कॉम्पोजिशन में। नेक्स्ट वन इज इन द फिफ्थ कॉलम। तो टेक्निकली जो 2 का टोटल होगा वो मैच करना चाहिए किससे, 6 + 7, और 6 किसका टोटल होगा, 3, 4, 5 का। अब ये क्या कह रहे हैं, हम इसको करेंगे डिटेल में जो बोल रहे हैं। तो अभी जो मैंने बोला कि एक्टिविटीज कौन कौन सी, इतना आपको बताया था। एग्जम्पशन में क्या आती है, शेड्यूल 3 में एग्जम्प्ट किया हुआ है सैलरीज। सैलरी मींस वो इसीलिए एग्जम्पशन में है क्योंकि कोई भी सर्विसेज अगर कोई एम्प्लॉयर को देता है और उसके इन रिस्पेक्ट टू दैट आपको कुछ मिल रहा है, तो दैट इज नॉट अ सप्लाई एग्जम्पशन दी गई है, तो सैलरीज इसमें आ जाती है। अब ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आप असेसी रजिस्टर्ड हो कि नहीं, आपने यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज आई दैट इज द वर्ड इज टोटल एक्सपेंडिचर। दे हैव रिटन टोटल। जब टोटल लिखा तो इतना तो आ गया कि अलग अलग नहीं लिखना, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक चार्जेस, सैलरीज, अलग अलग नहीं लिखना, वी हैव टू गिव द टोटल। सेकंड क्वेश्चन माइंड में आता है, अगर टोटल देना है तो इन्होंने एक्सपेंडिचर वर्ड लिखा है, कहीं पे लिखा है रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर, नो, दे हैवंट रिटन इट एनीवेयर कि रेवेन्यू डालना है कि कैपिटल डालना है। टोटल लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव टू डिस्क्लोज बोथ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों बताने हैं। बट एज पर द गाइडेंस नोट, आईसीआई का जो गाइडेंस नोट है वो ये कह रहा है कि दोनों को अलग अलग बाइफरकेट कर देना। एक रो कर देना आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, सेकंड करेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस लाइक वी परचेज फिक्स एसेट, वी परचेज मशीनरी, वी परचेज मोबाइल, वी परचेज फर्नीचर, सो दिस इज ऑल अ कैपिटल एसेट। इस पे जो आपने एक्सपेंडिचर किया है हमें वो भी देखना पड़ेगा, मशीनरी जो ली थी वो आपने किससे ली थी, रजिस्टर्ड से ली थी कि अनरजिस्टर्ड से ली थी। और नाउ द सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अब ऐसे आ चुके हैं कि जब आप डेटा एंटर करते हैं वो पूछते हैं कि आपने ये रजिस्टर्ड पर्सन से लिया है, तो आपका जीएसटी नंबर उस पार्टी का डालते हैं, एंटर करते हैं, फिर जीएसटी उसपे इनपुट मिलता है। बेसिकली अगर मशीनरी है तो इनपुट भी मिलेगा, बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर द बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो आईटीसी मिलना है तो ये सारा डाटा इन द सॉफ्टवेयर वी एंटर्ड, एंड नाउ द सॉफ्टवेयर आर जनरेटिंग अ रिपोर्ट फॉर दिस कि आपने कितने एक्सपेंडिचर, यू हैव नॉट टू डू इट। मैं आप मैं सोचो कि हमें मैनुअली एक एक सिंगल सिंगल बिल करना है, नहीं, जब ये बट द रिस्क, अब हमारे पास अकाउंटेबिलिटी एज अ सीए वी हैव टू रिपोर्ट, और एज द owner of the business, you have to give that information to the chartered accountant, so you are also accountable for that। तो आपको इसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए, ऑथेंटिसिटी के लिए, आपको एक्यूरेसी चेक करने के लिए ये देखना है कि जब डाटा पंच होता है, द चैलेंज इज कि जब पंचिंग हुई डाटा की, जब एंटर किया है सॉफ्टवेयर में, तो एट दैट मोमेंट पंचिंग ठीक हुई है कि नहीं हुई है, ये ओनली देन द आउटपुट विल बी फाइन, तभी हमारी ये रिपोर्ट ठीक निकलेगी, सॉफ्टवेयर जनरेट कर पाएंगे। अगर आपने, अब ये चैलेंज कहाँ पे आता है, देखो कितना इजी है, हम कहते हैं कि ये तो सॉफ्टवेयर ने कर देना है, बट नाउ जस्ट टेक अ एग्जांपल ऑफ अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर का टैक्स ऑडिट कर रही हूँ, डॉक्टर की सिर्फ एग्जम्प्टेड में डील करते हैं, सबको पता है, उनको कोई वो अपनी मेडिसिन वगैरह सेल नहीं कर रहे थे, जो कर रहे थे वो इन हाउस जब हम आपका ट्रेड करते थे वो उसी में ही देते थे, ठीक है, दैट्स इट, दैट इज अ पैकेज वन। अब जब मैं उनका ऑडिट कर रही हूँ, उनके सॉफ्टवेयर में जीएसटी का कोई लॉजिक ही नहीं था, रीजन उन्होंने जीएसटी नंबर नहीं लिया था। तो जो वो खुद कुछ भी बाय कर रहे थे, आइदर वो मशीनरी बाय कर रहे थे, मेडिसिन बाय कर रहे थे, डेली रेकरिंग एक्सपेंसेस अपने कर रहे थे, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन से लिए हैं कि अनरजिस्टर्ड से लिए हैं, वो इसकी सॉफ्टवेयर में एंट्री नहीं कर रहे थे।
तो नाउ द चैलेंज फॉर दैट पर्सन इज ऑल्सो कि वो रिपोर्ट कहाँ से निकाले। फॉर मी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इट इज अ चैलेंज, हाउ कैन आई ऑथेंटिकेट दैट डेटा। अकेले अकेले वाउचिंग तो पॉसिबिलिटी नहीं है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम all our professional they are facing. Expenditure need not to be reported headwise. Already clear, total word लिखा है तो टोटल को सबको इकट्ठा P&L का टोटल करके कर दो. You need not to give a breakdown. No doubt with the breakdown ही हमारा टोटल बनेगा. हमें ये वर्किंग करनी पड़ेगी. In the next slide I will show you कि हमें ये वर्किंग कैसे करनी है. पर जो P&L के क्या एक्सपेंडिचर होते हैं और जो यहाँ पे होंगे सेम होंगे, जो यहाँ हम रिपोर्ट करेंगे नहीं, वो सेम नहीं होंगे, उनमें डिफरेंस होगा. क्या डिफरेंस होगा उसके लिए है कंट्रोल शीट. रिकंसिलेशन क्या होगा अगर हम इनिशियली देखें तो सबसे पहले जो P&L में एक्सपेंडिचर है उसमें क्या चीजें ऐड करोगे. क्लोज 44 में मैंने बोला टोटल एक्सपेंडिचर बोला तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आते हैं और P&L में ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं. तो सबसे पहले जो P&L की फिगर आ रही है उसमें आप ऐड करोगे किसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को. जितने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो आप ऐड करोगे. आफ्टर एडिंग व्हाट यू विल डू, यू विल लेस. क्या लेस करेंगे, नॉन कैश चार्जेस. नॉन कैश मींस depreciation, provisions, bad debts, short and recovery. These have been given in the guidance note. तो ये चार चीजों को हम लेस करेंगे. उसके बाद जो सिक्योरिटीज और ट्रांजैक्शन के रिलेटेड एक्सपेंडिचर थे उसको भी एक्सक्लूड करें. रिकंसिलेशन रिपोर्ट, कंट्रोल शीट वी ऑल हैव टू मेक. तो हमें ये बनानी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि जो P&L में आ रहा है और जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया ऐड किया दिस विल बी ए टोटल टू द क्लोज 44. ऐसे बिल्कुल भी नहीं है. सो अगर बाइफरकेट करना चाहूं तो इस क्लोज में क्या आया, सबसे पहले आपने एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू रजिस्टर्ड पर्सन अलग कर दिया. या तो देखो दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, या आपने रजिस्टर्ड से लिए GST से या नॉट रजिस्टर्ड से. अगर आपने रजिस्टर्ड से लिए तो कितनी है जो एग्जम्प्ट रिलेटेड टू एग्जम्प्ट है. रीजन बिंग एग्जम्प्ट फ्रॉम GST पे ITC नहीं मिलता, कॉम्पोजिशन डीलर पे ITC नहीं मिलता, रजिस्टर्ड पर्सन से मिलता है. नाउ दे हैव यूज्ड द वर्ड टोटल पेमेंट. यहाँ पे लिखा टोटल पेमेंट्स है बट वो टोटल पेमेंट नहीं है. टोटल पेमेंट इज टू बी इंटरप्रेटेड एज एक्सपेंडिचर. क्योंकि जब आप टोटल करेंगे दे वांट कि 3 4 5 का टोटल है 6, so this is not equal to the payment. The reason we make our P&L on the basis of accrual system. accrual कैसे, आज मैंने परचेज की है, परचेजेस इज आल्सो एक्सपेंडिचर. सारी की सारी परचेजेस की 22-23 फाइनेंशियल ईयर के पर्टेनिंग पेमेंट 22-23 में नहीं हो जाती, वो 23-24 ईयर में भी जाएगी फाइनेंशियल ईयर में. तो यहाँ पे हमने पेमेंट कंसीडर नहीं करना, यहाँ पे हमने टोटल लेना है. तो इट इज टू बी इंटरप्रेटेड एज एक्सपेंडिचर ओनली. आई थिंक दिस इज अप टू दिस लिटिल बिट क्लियर और नॉट. कैन आई जस्ट गेट योर thumb, yes, no, anything in the chat box please. So can I visualize the audience is alive too? Yeah, great, great Mansi. Other two, Yogeshri, thank you. Yes. So you are getting it what I'm saying ki in the close 44 we are simply, Arun sir, thanks for responding to. So in this we are simply saying just to bifurcate. गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमें यह बता दो आप कितना अनरजिस्टर्ड के साथ डील करते हो और कितना रजिस्टर्ड के साथ करते हो. इसके आगे ये तो थी मेन बाइफर्केशन. इसमें सबको वो क्लियर हो गया. दे आर सेइंग यस टू मी, ग्रेट. सो अगर हम एक
जस्ट आई ऑन ऑल द एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर की लिस्ट, दिस इज ओनली अ एग्जांपल I have incorporated. It is a illustrative, a list. N number of industries, N number of expenditures. So the major I have put it in: advocate fees, audit fee, computer, everything. So now see at the depreciation. In the other, you have simply to bifurcate कि वो रजिस्टर्ड से है कि अनरजिस्टर्ड से है, टोटल इनका मैच करेगा, ठीक है, कितना कितना कहाँ कहाँ पे। But for depreciation, just see in the depreciation, it will come only in the column number 2 and not anywhere else. Same is the case with salaries. Electricity, अगर as it related to electricity का अगर हम देखें, just see in this electricity pertaining to रजिस्टर्ड, अगर पीएसपीसीएल रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड में आएगा, अगर अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड में चला जाएगा। बट अगर रजिस्टर्ड में आएंगे तो वो कौन से कॉलम में आएंगे? रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सेम इज द फ्यूल, जो मैंने आपको बोला, जब आप डीजल फिल करवाते हो, पेट्रोल फिल करवाते हो, पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी नहीं है, बट पेट्रोल वो लुब्रिकेंट ऑयल भी सेव करते हैं, उनकी एग्रीगेट एक्सीड कर जाती है। इतने पेट्रोल पंप है, यू विल सी उन्होंने अपना जीएसटी नंबर लिया हुआ है। तो अगर उन्होंने अपना जीएसटी नंबर लिया हुआ है, क्या करते हैं, तो हम जब उनसे पेट्रोल फिल करवा रहे हैं, हमारा जो एक्सपेंस आ रहा है फ्यूल का, तो मैं क्या बोलूंगी कि मैंने किससे डील किया, मैंने रजिस्टर्ड पर्सन से डील किया कि अनरजिस्टर्ड से। पहली बात, जिसका टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट जा रही है, हम उसके कंटेस्ट में बात कर रहे हैं कि उसने जो एक्सपेंसेस पे किए हैं, उसने वो एक्सपेंसेस किसको पे किए थे, रजिस्टर्ड को कि अनरजिस्टर्ड को। अगर हमने, मेरा टैक्स ऑडिट हो रहा है और मैंने पेट्रोलियम पे 1 लाख का एक्सपेंस किया है पेट्रोल का, तो जब पेट्रोल पंप वाले जो थे, जितनी मेरी स्लिप्स है, दे आर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। इफ दे आर रजिस्टर्ड, देन इट कम इनटू द कैटेगरी 3, 4, 5। अब 3, 4, 5 में कहाँ पे आएंगे? 3, 4, 5 में ये थर्ड नंबर कॉलम में आएंगे, रिलेटेड टू द गुड्स और सर्विसेज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। क्लियर? Yeah, the N number. Now coming to the total expenditure. Total here means जब कैपिटल को है तो उसको भी लेना है, तो कैपिटल में मैं आपको बता चुकी हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स आपने लैपटॉप बाय किया, कैमरा बाय किया, सॉफ्टवेयर बाय किया, कुछ भी एज पर द अकाउंटिंग रूल वी ऑल नो, रेवेन्यू मीन्स recurring nature and amount is not so huge. Capital means one time expense which is going to give benefit for more than 1 year. It is to be capitalized. तो कैपिटलाइज्ड में आपको देखना है कि वो रजिस्टर्ड से बाय हुआ है कि अनरजिस्टर्ड से बाय हुआ है। यहाँ पे अगर आपने मोटर कार भी ली होती तब भी आना था। यहाँ बात ये नहीं कर रहे हैं बाइफर्केशन में आईटीसी किस पे लिया, आईटीसी किस पे नहीं लिया। यहाँ बात चल रही है आपका टोटल एक्सपेंडिचर आपने रजिस्टर्ड से लिया कि अनरजिस्टर्ड से लिया। दे आर नथिंग टू डील विद द आईटीसी अमाउंट। सो दिस इज already we have discussed. And for the composite dealer, please keep in mind composition dealer कौन से होते हैं, composition dealer की पहचान कहाँ से होती है। अगर आपके हाथ में कभी कोई बिल आता है तो आप कहोगे मैम हमें कैसे पता कि ये रेगुलर है कि कॉम्पोजिट है, तो कहाँ से पता चलते हैं? ये 3 पॉइंट माइंड में रख लेना। कॉम्पोजिशन के ऊपर बिल ऑफ सप्लाई लिखा होगा, कभी भी टैक्स इनवॉइस नहीं लिखा होगा। कभी कॉम्पोजिशन वाले जीएसटी का बिल रेज नहीं कर सकते, वहां पे जीएसटी अमाउंट नहीं होगा, और वो इंटर स्टेट सप्लाई में डील नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज, दीज आर द एक्सपेंडिचर जो नंबर 2 में आएंगे, बट रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में बाइफर्केट नहीं होंगी। मतलब 3, 4, 5, 6 इज अ टोटल ऑफ 3, 4, 5, यानी कि 3, 4, 5 और 7 में ये एक्सपेंडिचर की अमाउंट नहीं आएगी। तो जो डिफरेंस होगा 2 का, 2 बेसिकली क्या होने जा रहा है, 2
हमें लग रहा था 2 विल बी इक्वल टू 6+7। नो, 2 विल नॉट बी इक्वल टू 6+7। जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ ये 5 थिंग्स का आएगा। सैलरीज, depreciation, bad debt. Bad debt, basically it's not an expenditure, it's an allowance. And also in the case of partnership firms, salary to partner, interest to partner, they are not the expenditure, they are the appropriations. सो वो माइंड में मत लाना यार, यहाँ पे तो सैलरी में हम सैलरी की बात कर रहे हैं, तो सैलरी टू पार्टनर का क्या बनेगा, इंटरेस्ट टू पार्टनर का क्या बनेगा, इंटरेस्ट टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर। अगर इंटरेस्ट टू पार्टनर दे आर expense, but salary to partner, they are the appropriations. Short end excess, rounding off. So we have to report payments. They have used the word payment, but as I already told, revised guideline accordingly, the total expenditure means the expend, not the payment, but the expenditure booked in the books of account. So let's take this example. आपके पास ऐसे P&L आ रहे हैं, how you have to bifurcate. So expenditure को कैसे bifurcate करना है, आपकी हर amount को, only the total column will go over there, but for that total working, head wise working we have to do, and this report is generated by some software too. अगर नहीं है तो आपको ये वाली रिपोर्ट पे वर्कआउट में करना है कि कहाँ पे आएगा, एंड सी इन द सैलरी, सैलरी विल, सैलरी कहाँ पे आ रही है, सिर्फ कॉलम नंबर 2 पे आ रही है, उसके आगे उसकी अगर बाइफिकेट आपने देखना है कहाँ पे कैसे है तो वो चीज है। अब हमने बोला आपने बात करनी है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये वाला। मैम आप कह रहे थे पर्सन रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड हो बाइफिकेट कर दो ना। आज की डेट में क्या सिचुएशन हो रही है, अगर गवर्नमेंट कहीं पे इंस्पेक्शन करती है, एज आई एम डीलिंग इन द I'm a GST practitioner too and dealing in inspection and all these things, तो हमारा हैंडलिंग नोटिसेस जो आजकल बहुत ज्यादा जीएसटी में आ रहे हैं, हम उसको भी मैं डील करती हूँ, तो वो भी टॉपिक कवर करना था, बट मे बी ड्यू टू द पॉजिटिव ऑफ टाइम will not be able to cover that. So in this scenario what they want to ask, अगर किसी की इंस्पेक्शन हुई, हमें पता चला कि ये इससे जो बाय कर रहे थे, ठीक है, वो एक पर्सन गलत निकल आया, रजिस्टर्ड पर्सन, ये क्या कर रहे हैं, आपके जितने भी उसके लिंक के जीएसटी नंबर थे उन सबको कैंसिल कर दिया जाता है, एंड दैट इज फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो आज जब हम किसी का टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, उनके जब मैं टैक्स ऑडिट कर रही हूँ, एक एक्सपेंडिचर में जो एक एक्सपेंडिचर जिससे किया था, जिस पर्सन से मैंने स्टेशनरी लेट सपोज परचेज की थी या मेरी परचेजेज ही थी, उससे एक रजिस्टर्ड सप्लायर से मेरी जो बाइंग थी, वो आज की करंट डेट में उसका स्टेटस कैंसल्ड है। तो कैंसल्ड मींस इन द जीएसटी वो अब अनरजिस्टर्ड की कैटेगरी में आया। तो ना द क्वेश्चन इन आवर माइंड दैट पॉप अप, क्या आएगा दिमाग में क्वेश्चन कि मैम इसको हमने कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे एंटर करेंगे, रजिस्टर्ड की कैटेगरी के कि अनरजिस्टर्ड की, हरी आप टेल मी, ग्रेट योगेश जी, हरी आप टेल मी। हमें एक्सपेंडिचर, मैंने 2018 में एक एक्सपेंस किया, ठीक है, अच्छा, हम 2018 की भी इसकी बात बताऊंगी। आज की डेट में अगर आप 18-19 का भी ऑडिट कर रहे हैं, चाहे ये क्लोज लास्ट ईयर से है, बट वो जितनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आज की डेट में सबमिट होगी, चाहे वो पर्टेनिंग टू 18-19, 19-20, 20-21 है, ये क्लोज एंटर करना पड़ेगा। ये क्लोज का मतलब ये नहीं है कि ये इस साल से शुरू हुआ है, इसका मतलब है इस डेट से जितनी भी ऑडिट रिपोर्ट अप होंगी वो इस क्लोज के साथ डाटा एंटर करके जाना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन है, हम ऑडिट कर रहे हैं 22-23 का, 22-23 में मेरे परचेजेस मैंने की, वो सप्लायर ने आज की डेट में उनका नंबर कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया अंडर जीएसटी मींस ही इज कंसीडर्ड टू बी अनरजिस्टर्ड। तो मैं जब ये बायफरकेट करूंगी परचेज को, तो उसको कौन से कॉलम में लूंगी, रजिस्टर्ड के अनरजिस्टर्ड? हरी आप मैसेज में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स। आज मैं ऑडिट के टाइम पे
जिस टाइम मैंने सप्लाई की थी, मैंने परचेज की थी, उस टाइम वो रजिस्टर्ड थे, बट आज वो अनरजिस्टर्ड हो गए हैं, तो मैं उसको कहाँ पे अपनी परचेज को शो करूंगी, रजिस्टर्ड में कि अनरजिस्टर्ड में? एनी गेस? मानसी, ग्रेट, रजिस्टर्ड, टू गुड। बेसिकली वी हैव टू सी एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब मैंने बाइंग की थी तब तो वो रजिस्टर्ड ही था, तो हम उसके अकॉर्डिंगली देंगे। फॉर सेफ्टी नाउ नोट आउट, यू कैन गिव योर note also कि now it has been, the status has been changed. So this is all. um from starting I am saying this thing, we have to bifurcate into this. Now for the supply, सप्लाई को प्लीज ध्यान से सुनना। एक होता है जीएसटी सप्लाई, एक नॉन जीएसटी सप्लाई। नॉन जीएसटी सप्लाई मींस दिस इज नॉट एट ऑल अ सप्लाई। नॉन जीएसटी सप्लाई कहीं जीएसटी में नहीं लिखा, बट वर्ड सप्लाई लिखा है। जो वर्ड सप्लाई नहीं आता दैट इज अ नॉन जीएसटी सप्लाई। बट जब भी बात करते हैं एग्जाम्प्ट की, तो जीएसटी सप्लाई में जब बात चलती है तो वो ये चलती है टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल। टैक्सेबल जिसपे जीएसटी लगता है, नॉन टैक्सेबल मींस जो एग्जाम्प्ट है या निल रेटेड। सो नॉन टैक्सेबल मींस ऑलरेडी लिटर। नॉन टैक्सेबल का मतलब एग्जाम्पल दे चुकी थी मैं, जो एग्जाम्प्ट किए गए हैं, अल्कोहलिक लिकर, वो सप्लाई है जीएसटी में, बट इस पे जीएसटी नहीं लगता। पेट्रोलियम, हाई सी डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन, या इन सब पे दे आर कंसिडर्ड एज एग्जम्प्ट सप्लाई। इस पे रूल 40 to 43 लगेगा आईटीसी के लिए, बट फॉर द टाइमिंग हमें इसको देखना है कि क्या। यहाँ पे जब आईटीसी की बात करते हैं, नॉन जीएसटी सप्लाई इज नॉट अ जीएसटी सप्लाई। ये सबको क्लियर हो गया ये चीज? is very much GST supply, only it has to be kept out of the GST levy for the time being. नॉन जीएसटी में तो बिल्कुल ही नहीं देखना। जो नॉन टैक्सेबल होती है, इट मींस अभी तक वो सप्लाई है बट गवर्नमेंट ने उस पे जीएसटी नहीं लगाया। नेल रेटेड मींस जिसपे अभी तक रेट ऑफ टैक्सेस नेल। क्लियर? यहाँ पे दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट जीरो रेटेड, यानी कि एक्सपोर्ट की, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है? इन ऑर्डर टू बी एन एग्जाम सप्लायर, द सप्लाई हैज टू बी फर्स्ट टैक्सेबल। पहले टैक्सेबल होगी तभी तो एग्जाम्शन होगी। और एग्जाम्शन के लिए एक चीज इजी से याद करवा देती हूँ आपको। गुड्स के लिए नोटिफिकेशन देखनी है तो 1 फॉर रेट, 11 फॉर देयर एग्जाम्शन। सर्विस के लिए देखनी है तो नोटिफिकेशन 2 by 2017 and 12 by 2017 is for exemption। तो आप देखोगे 1 और 11 गुड्स और सर्विसेज में रेट जो दिए होते हैं वह वहां दिए होते हैं, और अगर एग्जम्पशन चेक करनी है तो 2 और 12 में है। तो क्लोज 44 बेसिकली ये हमें चैलेंजेस और वो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे अब हमारे चैलेंजेस कहाँ पे आते हैं। जैसे मैंने बोला था एग्जाम्पल में, डॉक्टर का मेरे पास ऑडिट आ रहा है, तो डॉक्टर ने तो आज तक कभी उन्हें जरूरत ही नहीं थी, तो उन्होंने कभी डाटा पंच ही नहीं किया, तो वो कितना जीएसटी वालों से ले रहे हैं, कितना विदाउट जीएसटी वालों से ले रहे हैं। सो दिस इज द चैलेंज कि हाउ वी कैन एट द टाइम ऑफ ऑडिट बाइफरकेट द एक्सपेंडिचर। सो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, एक थोड़ा ये लगता है सोल्यूशन, इफ द गवर्नमेंट वांट दिस थिंग, तो जो जितने रजिस्टर्ड पर्सन है 3B जब फाइल करते हैं, क्यों ना उसमें ये कॉलम एंटर कर दे, सो दैट वी कैन गिव दैट डाटा कि हमने कितनी अनरजिस्टर्ड से बाइंग की, इंस्टेड से टेलिंग अस टू डिस्क्लोज एंड इन द ऑडिट रिपोर्ट पुटिंग इज दिस। सो आई थिंक ईज विल बी कि एट द टाइम ऑफ 3B यू कैन एंटर द डाटा। अब क्या होगा, अगर आपने सबने ये देखा कि 9C9 जीएसटी ऑडिट में पहले आया था, जो अभी चला गया, बट जीएसटी चला गया, ऑडिट चला गया, कहने का मतलब था सीए की अटेस्टेशन चलेगी, बट अटेस्टेशन बाय द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं गई है।
जीएसटी या 9C अभी भी है, तो 9C का द रेलेवेंट कॉलम नंबर 14 आई हैव इंसर्टेड फॉर यू ऑल। ये 14 नंबर जो कॉलम है ना, लेटर ऑन गवर्नमेंट की इंटेंशन या टैक्स वालों की, जीएसटी वालों की ऑडिट के टाइम पीरियड में क्या इंटेंशन है, वो आपसे आपकी ऑडिट रिपोर्ट लेंगे, क्लॉज 44 लेंगे, उसका डाटा स्लाइड इधर से मैच करें। नो डाउट हियर द डाटा पर्टेन टू ITC available or not. But clause 44 is from registered or unregistered. Even though we have make a purchases from registered person, अगर आपने registered person से purchase किया है, इसका मतलब ये नहीं है उस पे GST इनपुट लिया ही होगा। एग्जाम्पल में 17(5) के अंडर सेक्शन के अंदर कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। बट अगर हम बात करें मोटर कार, रिपेयर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ मोटर कार, इंश्योरेंस ऑफ अ मोटर कार, ये क्या है, ये सारी चीजें आपके पास आ रही है, जीएसटी लगा हुआ है, बट वी कांट टेक इनपुट क्रेडिट ऑफ दिस, इनएलिजिबल। सो अगर पर्टेनिंग टू टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे, तो मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लोजेस रिलेटेड टू जीएसटी कवर किए हैं। सो द क्लोज नंबर 4, क्लोज नंबर 4 क्या कहता था, हमें ये बताना है। अब देखो, या तो आपके पर्सन ने जीएसटी नंबर लिया होगा या नहीं लिया होगा। अगर लिया, ओके फाइन, यू हैव टू मेंशन जीएसटी नंबर ओवर हियर। और अगर ऐसा है कि एक के पास 5-6 ब्रांचेस थे, 6 जीएसटी नंबर लिए हैं, स्टेट वाइज लिए हैं, या एक ही स्टेट में 5 नंबर ले लिए हैं, तब भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो द सेकंड क्वेश्चन आता है, मैम वो लायबल था जीएसटी के लिए बट उसने नंबर नहीं लिया, देन यू हैव टू रिपोर्ट ओवर हियर कि यस ही इज लायबल बट उसने नंबर नहीं लिया हुआ। After that, in the tax audit report, another relevant column is clause number 10, जिसमें हमें मेंशन करना होता है कि नेचर ऑफ बिजनेस बताओ। अब जब हमने नेचर ऑफ बिजनेस बताना है, we all know income tax side और GST side, they are linking data, sharing data with them। आज की डेट में आप 26 AS निकालोगे, AIS निकालोगे, तो AIS में आपकी टर्नओवर, आपकी बाइंग, एवरीथिंग इज देयर। तो उस टाइम पे आपको चेक करना है ऑडिट रिपोर्ट में कि जो नेचर आपने यहाँ पे मेंशन किया, जो इनकम टैक्स में अपना नेचर दे रहे हैं, और जब जीएसटी नंबर लिया था उस टाइम पे आपने क्या बोला था, हमने कौन सा काम करना है, ये दोनों नेचर मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। अदरवाइज यू विल बी इन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। देन कमिंग टू द क्लोज नंबर 13, बट क्लोज नंबर 13 इज आस्किंग फ्रॉम अस। उन्होंने क्या मांगा हुआ है क्लोज नंबर 13 में, हमें जब भी बोलते हैं वैल्यूएशन के लिए, उसमें आईसीडीएस की बात करते हैं, तो हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में, अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें, तो उन्होंने बोला वैल्यूएशन में इनपुट टैक्स क्रेडिट जितने भी हैं वो कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। तो ये सिर्फ डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज अदरवाइज मेंटेनेंस बुक्स की ऐसे नहीं होती। हमें पता है जब हम स्टॉक लेते हैं उसमें जीएसटी का पार्ट जब परचेज करते हैं, तो परचेज की एंट्री क्या होती है, लेट सपोज मैंने 10 लाख की बाइंग की, 18% पे की, 1,80,000 का उस पे हमें जीएसटी लगा और 11,80,000 मेरे को पे कर रहे हैं, तो मेरी बाइंग परचेज हिट होगी 10 लाख से। 1,80,000 मेरी बुक्स में इनपुट स्टैंड होगा जीएसटी। और वो कौन सा किया था, लोकल बाइंग थी तो एसजीएसटी सीजीएसटी इन इक्वल प्रोपोर्शन 90-90, इंटरस्टेट की थी तो 1,80,000 इन द आईजीएसटी। बट बुक्स हमारी ऐसे मेंटेन होती है, ये सिर्फ ओनली फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, आईसीडीएस इज ओनली फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड वी हैव टू कीप इन माइंड दिस ट्रू। Another relevant topic related to the GST in the tax audit report is clause number 16D। इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें रिपोर्ट करना होता था कि क्या हमारे कैपिटल अकाउंट में कोई ऐसी एंट्री क्रेडिट इनकम की है जो पीएनएल में रिपोर्ट नहीं है। क्योंकि हम क्या करते थे, जितने आपके पर्सनल, इन द केस ऑफ प्रोप्राइटर, आपके जो सेविंग्स अकाउंट होते थे उनपे जो इंटरेस्ट आ रहा था, या आपकी जो रेंटल इनकम होती है, ठीक है, तो रेंटल इनकम का हम उसको बिजनेस के साथ लेना नहीं है, तो हम क्या करते थे, कैपिटल अकाउंट पे रोटेट होता था तो वो हाउस प्रॉपर्टी में अलग जाती थी, हेड में शो होती। बट अंडर जीएसटी हमें ध्यान से देखना है कि जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे कैपिटल अकाउंट में, क्या वो कैपिटल अकाउंट में कोई ऐसी इनकम तो नहीं है जिसपे जीएसटी बनता है। एज यू ऑल नो, रेंट
is in itself a big, topic to be discussed or covered under GST. पहले कुछ और एप्लीकेशंस थी कि क्या लेना है, ओनली फॉर द रेजिडेंशियल नहीं होता है जी, कमर्शियल के लिए दिया, बट नाउ द सिनेरियो इज डिफरेंट, रिवर्स चार्जेस आल्सो कम इनटू द पिक्चर। तो आपको ये चीज बड़े ध्यान से करनी है। अनदर क्लोज इज द क्लोज नंबर 17। क्लोज नंबर 17 में हम क्या करते हैं? क्लोज नंबर 17 में हम डाटा एंटर करते थे कि आपने कोई लैंड या बिल्डिंग सेल किया इस ईयर जिसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू कम है, किससे? स्टैम्प ड्यूटी से, तो वी हैव टू फर्निश ओवर हियर। तो अब जब आप यहाँ पे ये डाटा फर्निश कर रहे हो तो ध्यान रख लेना कोई ऐसा हमने ट्रांसफर एसेट, क्योंकि जीएसटी में लैंड सेल पे नो जीएसटी, बट अगर कंस्ट्रक्शन पे वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। बट अगर आप पूरा घर कंप्लीट करके भेजते हो देन ऑल्सो देयर इज नो जीएसटी। बट आप क्या दिखा रहे हो, कैसे करना है, दिस हैव टू बी कीप इन माइंड। अनदर वन important one is this clause where clause 21 ने it's all about where we differentiate। क्या बताते हैं हम यहाँ पे? कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो पर्सनल नेचर का हो। अब यहाँ जब पर्सनल नेचर की बात आती है, जब से जीएसटी आया एक चीज बहुत अच्छी हुई, क्या हुआ है? पर्सनल बाइंग करने जाना होता है, पर्सन की हैबिट है, वो अपना जीएसटी नंबर दे देते हैं हर जगह कि शायद इसका भी इनपुट मिल जाए, इसका भी इनपुट मिल जाए। तो हमें ध्यान से देखना है कि अगर जितना यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंडिचर डाला है उसका आईटीसी तो नहीं क्लेम कर लिया बुक्स में, वी हैव टू रिवर्स इट। अगर आप अगली बार करोगे तो उसका यूज नहीं होगा, क्योंकि इस बार अगर वंस आईटीसी सेम, लेट सपोज आपने बाइंग की, घर के लिए कोई सामान लिया, वहां पे उन्होंने आपका जीएसटी नंबर एंटर कर दिया, या आप कहीं घूमने जा रहे हैं, पर्सनल भी देखने जा रहे हैं, बट सो एवर आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो आप अपना जीएसटी नंबर एंटर कर देते हैं पर्सनल शॉपिंग के लिए भी। इन दैट सिनेरियो वी हैव टू चेक कि अगर यहाँ पे पर्सनल डाला हुआ है तो वो वाले पे आईटीसी क्लेम नहीं होना चाहिए। गेटिंग इट? और जब हम बाहर से कोई भी मटेरियल, यहाँ पे ये भी था कि फॉरेन पार्टी से कोई ट्रांजैक्शन हुई, हमने यहाँ तो डाल दी, बट इतना याद रखना कोई भी फॉरेन पार्टी से अगर आप कुछ लेते हैं, सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, तो हमें लगता है बाहर की पार्टी को करना था ना, वो तो अनरजिस्टर्ड है तो हमारे पे बात नहीं आएगी। नहीं, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है देन यू विल बी कवर्ड अंडर आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मींस इवन दो यू आर रिसीविंग सर्विसेज, नॉट यू आर नॉट अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस बट रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, तब भी आपको जीएसटी पे करना है। तो ये चीज बड़े ध्यान से लिखनी है। रिलेटेड पार्टी, अगर आप क्लोज 23 में रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में ये चीज डाल रहे हैं देन चेक इट आउट। क्या चेक करना है यहाँ पे? रिलेटेड पार्टी में जब अमाउंट डालनी है तो क्या वो दूसरी पार्टी रिलेटेड भी, उसके पास भी जीएसटी नंबर था, देन इट्स ओके फाइन। बट अगर उसके पास जीएसटी नंबर नहीं था देन वैल्यूएशन रूल विल अप्लाई। वो वैल्यूएशन रूल यही है कि आपने जितने पे, उसको 1 लाख का मटेरियल है, आपने उसको 30,000 पे दे दिया, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास भी जीएसटी नंबर है और आपकी ब्रांच के पास भी जीएसटी नंबर है या आपकी सिस्टर कंसर्न के पास भी जीएसटी नंबर है, बट अगर उसके पास जीएसटी नंबर नहीं था तो देन दे विल चेक कि क्या ये ट्रांजेक्शन आर्म लेंथ डिस्टेंस पे हुई है, एडिक्वेट कंसिडरेशन की एडिक्वेट थी कि नहीं थी, दैट विल बी चेक्ड और रूल विल एप्लीकेबल। सैंडविच क्रेडिट जैसे 27 क्लोज में हमें डालना पड़ता था, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि जीएसटी के रिलेटेड हमने कितना ओपनिंग था, कितना क्लोजिंग था, कितना अवेल किया, और जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस वगैरह आपने पे किए हैं, वो भी यहाँ पे हमें, जब जितना 31 मार्च को मेरी जीएसटी की लायबिलिटी बनती थी, क्या वो पे हो चुकी है कि नहीं पे हो चुकी, ये हमें ध्यान से देखना। क्लियर? दिस क्लोज 41 pertaining to
आपकी रिपोर्टिंग ऑफ टैक्सेस डिमांडेड रिफंड्स। आगे इनकम टैक्स के इस बार कोई जनरेट हुई है डिमांड या रिफंड आया है, सेम जीएसटी में कोई डिमांड रेज हुई है या रिफंड आए हैं, वो भी यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा हमें। And the last one which we have discussed in detailed length, that is a clause 44. So I think this is all about clause 44. And for the GST RICO, more of the things have to be done. We have to match books versus 3B, input, RCM, everything have been shared with you. So any question you can just ask. Hope I am able to give little but knowledge I have to you. Deliberate. आपको clause 44 सबको little bit समझ आया? Can I get in the chat box yes or no? थोड़ा थोड़ा समझ आया? As with the paucity of time, I have not to do it much, but क्या क्लोज में देना क्या है, कैसे करना है, ये सबको थोड़ा थोड़ा पता चला है? Just write in the chat box yes or no. Idea Paul. Any questions? Thanks, sir. You are saying yes. Others also, they are able to understand clause 44. Yes, ma'am. सर जीएसटी इज ओशन ऑफ नॉलेज, मैं इतना बता दूं, इतना कुछ है और इतने बेनिफिट्स भी हैं। अकेला ये नहीं है कि आप पे कंप्लायंस पार्ट बहुत है, कई पर्संस को अवेयरनेस ही नहीं है। एज आई एम लुकिंग इनटू द स्टार्टअप टू फंडिंग टू, इनमें भी डील करती हूँ, जीएसटी की लिटिगेशन में डील करती हूँ, और सम टाइम ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस ऑल्सो दे आर गेटिंग द लॉसेज, और उनको लगता है कि नहीं जीएसटी में हमें बेनिफिट नहीं हो रहा। अदरवाइज जीएसटी में बेनिफिट्स भी बहुत हैं, रिफंड्स भी बहुत हैं, एक्सपोर्ट करने पे, इन्वर्टेड पे, एवरीवेयर यू विल गेट बेनिफिट टू इफ यू आर हैविंग अ प्रॉपर नॉलेज। So I have Vaibhavji, I think other is not having any query, so we'll conclude if they are not having any query. Thank you, ma'am, for the wonderful presentation and explaining the topic in simplified way. So now I request everyone, if you have any questions, you can unmute yourself and ask directly, or you can put in the chat box. Ma'am, there is a question from Sanjay sir in the chat box. Is there any provision for unregistered consumer? So this is the main problem. We can only check कि whether he has filed 3B or not. क्या देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी 3B उस मंथ की, जिस मंथ का मेरे को बिल रेज किया है, वो की है कि नहीं की है। बट अगर हम बात करें कि सपोज मैंने आपको कोई गुड सेल किया, ठीक है, मैंने आपको इनवॉइस दिया, आप क्या कर सकते हो, आप पोर्टल पे जाके ये चेक कर सकते हो कि सोनिया ने रिटर्न फाइल की है कि नहीं। अब हो सकता है सर कि मैंने आपको 10 इनवॉइसेस दिए हो, ठीक है, 10 मेरे टोटल इनवॉइसेस थे, उनमें से आपका एक है, बट अमाउंट वाइज जब मैं एग्रीगेट कर रही हूँ, यू नेवर नो कि मेरी 3B में इक्वल है कि नहीं है। तो पहले ये चीज थी, अब क्या चीज हो चुकी है सर, गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि आपकी वन जो है जीएसटीआर 1, जिसमें बिल वाइज डिटेल्स आती है, दैट शुड नॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम 3B। कभी भी आपकी जो 3B होगी वो जीएसटीआर 1 से कम नहीं होगी। आगे क्या करते थे पर्सन, जीएसटीआर 1 फाइल कर देते थे, 3B फाइल नहीं करते थे। 1 से आपको दिखना शुरू हो जाता था, आपकी 2B में आनी रिपोर्ट शुरू हो जाती। नहीं तो मैम, सेलर मेरा ने जीएसटी, हेलो, मुझे ये हाँ जी पूछना सर, था कि अगर मैं एंड कंज्यूमर हूँ और मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, यानी कि मेरा कोई जीएसटी नंबर नहीं है, ओके,
तो ठीक है। अगर किसी सेलर ने मुझसे जो जीएसटी लिया है वो एक्चुअली गवर्नमेंट को पे किया है कि नहीं, ये मैं कैसे चेक कर पाऊंगा? नहीं 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 सर, यही मैकेनिज्म नहीं है, इसीलिए तो ये मेन प्रॉब्लम हो रही है। जब केसेस आते हैं ये हमें कहते हैं कि अगर सेलर चला गया तो इनोसेंट बायर से कहते हैं आपसे कलेक्ट करना है हमें, ठीक है। हम्म हम्म सो हम्म वही हम्म, सेड कि अगर आपके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है जहां से मैं चेक कर सकती थी, ठीक है, यू आर डूइंग मी, आस्किंग मी फॉर द इम्पॉसिबल थिंग्स टू डू। कोई आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे मैं चेक कर लूं, तो आप मेरे से कैसे कह सकते हो? आई एम टॉकिंग अबाउट इवन बी, यू आर टॉकिंग अ केस ऑफ संजय सर, B2C की बात कर रहे हैं आप। B2C यस का तो यस। इन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब आप सपोज हाँ, करो किसी शॉपकीपर से कुछ लेके आ जाते हैं, वो आपसे चार्ज कर देता है, ठीक है। हो सकता करेक्ट है करेक्ट इवनिंग में वो सारे जो बिल्स हो उसको टर्न करके साइड में भी फेंक देता हो, ठीक है, करेक्ट करेक्ट। और वो अपनी रिटर्न में ना दिखा रहा है। एंड यू आर वेरी राइट इन आस्किंग दिस। अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं। हाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो आप कंज्यूमर से तो ले लेता है लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं एग्जैक्टली करता तो। गवर्नमेंट को नहीं दिखाता। सर सिंपल सी बात करें, किसी की मंथली टर्नओवर जितने ये जो सेंटर्स है, सपोज करो उसकी 5 लाख की टर्नओवर है, ठीक है, बट वो शो कितने की करता है? 1 लाख की। वो ये यस। शो करता है मेरा काम हो रहा है, ठीक है, बट एक्चुअल क्वांटम ये नहीं पता चलता रिटेल। तो इसके लिए शायद कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि सर क्या है ये। मैकेनिज्म होना चाहिए। क्या होता है कि सर यही हो रही है, तभी तो गवर्नमेंट बड़ी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। क्या हो रहा है, इंस्पेक्शन ऑन द स्पॉट, जब वो आपके पास यहाँ पे आएंगे वो बिल बुक देखेंगे, देखेंगे कितना नंबर चल रहा था, ठीक है, वहां से चेक कर लेंगे आपने लास्ट क्या फाइल किया था। बट इतना अप्रोच करना और वहां तक पहुंचना, इट टेक टाइम। हम्म। अदरवाइज अभी तक हैंडी कुछ भी नहीं है सर। ओके मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Ma'am, there is one more question from Anand Pal Singh, sir. सर जो जीएसटी एक अनंत सर, दे आर आस्किंग, आई थिंक बिफोर अनंत सर, Sanjay sir query done. Thank you so much, Sanjay sir, for the appreciation. It's really the audience that make me too lively. And if Anand sir, you are asking, as we face a lot of issues that client has submitted GST, but it is not traceable in 26 years. How to check the GST detail in such cases? So what you want to say, ask in this कि AIS में जो रिपोर्ट आ रही है उसमें बात कर रहे हैं ना कि देयर इज अ बग सम टाइम, कि उन्होंने सबमिट किया है या कहीं पे डबल शो हो रही है, मैचिंग नहीं आ रही है अभी तक। एक्यूरेसी ऑथेंटिसिटी जो 26 AS और AIS में डाटा है, अभी इसमें फ्लॉज हैं। मे बी विद द फेज ऑफ टाइम सर वो ठीक हो जाए, बट इफ यू आर प्रिटी श्योर कि हाँ वहां पे आपके सर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो टर्नओवर तो आपके पास है, दैट इज द मेन एविडेंस, एंड फॉर द परचेजेस वो 2B से आता है। तो 2B के लिए आपको अगर आ रहा है बट वो AIS में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे साथ भी ये 1-2 केसेस में हुआ है कि राइटली आई नो कि 2B में आ रहा है बट AIS रिपोर्ट ठीक नहीं कर रही है, तो उसके लिए आपको वरी नहीं करना है, 100% उस पर रिलाई नहीं करना है। रीजन में अभी डाटा 26S और AIS का ऑथेंटिक नहीं है। मोर ओवर सर 26AS में जो टर्नओवर आती है ना वो 3B से आती है, जबकि 3B वाली ठीक नहीं होती है। क्यों ठीक नहीं होती है, मैं क्यों कह रही हूँ ठीक नहीं होती है? लेट सपोज मेरी लास्ट मार्च में कोई गलती हो गई थी, इसीलिए मैंने अप्रैल में उसको ज्यादा टर्नओवर दिखा दिया, तो वो इस अप्रैल की दिखा रही है। तो वो गलत बात है ना, जब मेरे अप्रैल से आप मार्च की रिपोर्ट ले रहे हो उसमें तो पिछले ही मार्च का भी कंटेंट है। इसलिए GSTR 1 जो मैंने फाइल की 9 की इंफॉर्मेशन होगी वो मोर रेलिवेंट होगी। तो जो ये दिखा रहे हैं हमें उसकी रिकंसिलेशन जरूर करके रखें, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। Hope I am able to solve your query, sir, or doubt in your mind and answer. Thank you very much, ma'am. It is rightly said. The only thing is that in ICS itself, like we have 200 or 300 ledger in my purview. So in that 300 ledger, the finance is saying that from 2016 onwards, that this GST is pending, and in ledger it is showing, and then client is always saying that it is already paid. So how to resolve that issue? Because the ICS from head office, generally they send 26 AS, just find it out and where it is there. And then when we further
have a query with the client, they said already paid. You check there in the system. So how to check that? So there is a complete ledger in the GST portal. I have shared my number too, as will be a paucity of time, but for you, I will definitely let you know. So I think your concern is कि आपका ledger में balance है GST का, ठीक है? जी. You are saying this thing. That's why you are not making a payment of GST in cash, basically. You want to say this thing? Yeah. कि आप कैश में पे नहीं कर रहे हैं जीएसटी, वो इसलिए नहीं पे कर रहे क्योंकि मेरा बाइक कंटेंट ज्यादा है. अनदर थिंग इज मैंने मशीनरी ज्यादा परचेज कर ली, जिसके कारण मेरे पास ह्यूज इनपुट है जो मेरी आउटपुट को कंपनसेट कर रहा है. दैट्स व्हाई आई नीड नॉट टू पे एनी आउटपुट टैक्स इन कैश बेसिकली. इज दिस द क्वेश्चन? Not सर that, आपका ma'am. Actually क्या होता है कि जैसे क्लाइंट ने जीएसटी डिडक्ट किया, ओके वो हमारे लेजर में वो पेंडिंग पेमेंट में रिफ्लेक्ट करता है कि ये जीएसटी हमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है 26AS में, या हमारे पास में उसका कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है. तो उस केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करें? क्लाइंट तो बोलता है मैंने नहीं पे कर दिया. सर, कौन सा प्रूफ की बात? जो अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो आपके जीएसटी पोर्टल पे लेट्स सपोज सर आप सेलर है, ठीक है, हम्म. और आपने मेरे को चीज सेल की है, ओके. हम्म. अब मेरे जीएसटी पोर्टल पे जब आप अपनी सेल की रिटर्न फाइल करेंगे ना, हम्म. तो मेरी एक रिपोर्ट आती है 2B की. वहां के ओके. आपके नाम के साथ, आपके जीएसटी अमाउंट के साथ, बिल नंबर के साथ सब दिखेगा सर, अच्छा. ऑन जीएसटी पोर्टल. ऑन और जीएसटी आज पोर्टल. की ऑन जीएसटी पोर्टल, और यही मैं बात कर रही हूँ, आज की डेट में एआईएस में ये चीज दिखनी शुरू हो गई है, इनकम टैक्स पोर्टल पे भी, बट थोड़ी एक्यूरेसी उसकी थोड़ी कम है अभी. तो मे भी कहाँ पे उनके गैप्स आ रहे हैं, दे विल एबल टू आइडेंटिफाई लेटर ऑन, ठीक है. 100% वो एक्यूरेट नहीं है, बट रिपोर्ट आनी शुरू हो गई, ओके मैम, थैंक यू. ठीक है. अदरवाइज स्टिल इफ एनीबडी हैव एनी क्वेरी, आई हैव शेयर्ड माय नंबर related to GST. You can talk to me anytime, no issues. राइट मैम, थैंक यू. So, Vaibhav sir, I think it's over. Thank you so much for this opportunity, Vaibhav sir. You are doing Thank you, really ma'am. an awesome job on every Saturday. So particular, I have seen your dedication to every time you are taking the follow-up too, and very sincere in that. Salute to you and this Thank you, platform too. Thank you, ma'am. Thanks, Prem sir. So I think, ma'am, there is no more questions. So shall we move ahead, ma'am? Yeah, sir. Okay. Thank you so much. Thank you. So our next session is on 16th of September. ICS is pleased to provide you all its research and development, integrated management system, QMS, EMS, and OHSS, excellence in education management, ISO made easy in Gujarati, Marathi, Telugu, and Hindi. For reading any of the above books, please contact Ms. Sushma Tindalkar on the given number and mail ID. Feedback form, please register on www.sadgunsam.org and go in your login and give your valued feedback to us. So thank you, Sonia ma'am. Thank you all the delegates and participants who were joined for the today's Sadgun Sam. And now it's time to officially close the session. Thank you, everyone. Thank you, ma'am.